Good morning students, welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. Students, how are you? I hope you are all fine at your places and watching our video and understanding the chapters. So students, today in this video we are going to start chapter 8 of class 12 biology. So before we start, I would like to remind you कि as CBSE has deleted some portion, तो हमारा जो chapter 7 है, it has been all the topics of this chapter has been deleted. तो आपको chapter 7 नहीं पढ़ना है. So we have skipped this chapter 7 and we are starting with the chapter 8, that is human health and diseases. So before we start the chapter, I suggest you to open your NCERT book and keep one copy and pencil with you, so that you can mark the diagrams, you can note down the important questions from board point of view and underline the definitions. So let us begin the chapter. Before we start the topic, contents बता दूँ मैं आपको, what we are going to study in this chapter. So you open page number 145 and here you will get the chapter human health and diseases. The topics which we are going to learn in this are there are some common diseases which we are going to discuss. Then we will discuss about immunity and the two main diseases, that is AIDS and cancer, we will discuss, and the last part is drug and alcohol abuse. So all the topics will not be able to come in one video. So we have made the two videos, and in this video we have taken two topics, that is common diseases in humans and immunity. So let us begin with the topic, that is what is health. What is health, children? You all are familiar with this word, and nowadays we are facing many problems related to health. You know, we are fighting with one disease, that is corona. So it is also related to health only. So health is not only the physical wellness. Physical के अलावा it includes mental and social well-being also. So WHO also has defined the definition of health, that health is the state of complete physical, mental and social well-being. Means from all the three aspects our body should be well. Now health increases, why we should be healthy? Health increases productivity and ensures longevity. Means एक तो हमारे काम करने की efficiency को increase करती है health, and हमारी life को long करती है. Ways to ensure good health. Children, you must be knowing कि हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे. तो let us discuss some points, like we should take balanced diet, proper food होना चाहिए, nutritious food होना चाहिए, no junk food should be there. Then personal hygiene, that is cleanliness of individual also and of our surrounding also. So hygiene should be there. We should regularly do some exercise. We should be physically active. We should go for walk या run या जो भी कुछ outdoor games should be there. And we should be aware about prevention and control of the diseases. As the time is going on, we should be very aware of कि हम किस तरह से अपना ध्यान रख सकें, किस तरह से infectious disease से बच सकें. तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. We should be aware कि हम कैसे prevent हो सकते हैं, क्योंकि एक बार disease होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है to maintain proper health. वापस से अपने आप को recover करने में time लग जाता है. So prevention is better than cure. Then proper waste disposal, हमारे घर के आसपास का पूरा जो waste disposal है, it should be proper, and control of vectors. Vectors means the animals which are the cause of the disease. तो जो वो animals या जैसे mosquitoes हैं उनको remove करना ज़रूरी है. And the last is vaccination. So vaccination is also required to prevent from the diseases. Now why do diseases occur? होती क्यों हैं diseases? हम क्यों बीमार होते हैं? तो there are certain reasons of diseases, like genetic reasons. कई बार हमारे parents से हमें बहुत सारी diseases या कुछ diseases हमको transfer हो सकती हैं. That will include innate deficiencies. कभी हमारे अंदर ही कुछ हमारी immunity में weakness हो सकती है, जिस वजह से वो diseases हमें transfer हो जाती हैं. And some are inheritable defects also. इन्फेक्शन से हो जाती हैं डिजीजेस. मोस्टली जो हमारे लाइफ लॉन्ग लाइफ पीरियड में जो डिजीजेस होती हैं वो मोस्टली इन्फेक्शन से होती हैं. सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, इफ़ यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव, वी आर नॉट प्लेइंग, और फिजिकली हम कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रन नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, एंड वी आर टेकिंग ओनली जंक फूड, देन क्या होगा? हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? सीडेंट्री. मीन्स हम बिल्कुल रुके हुए से हैं, वी आर नॉट हमारी बॉडी को हम कुछ वर्क ही नहीं दे रहे. तो दैट विल ऑल्सो मे बी द रीज़न ऑफ डिजीज़.
and consumption of alcohols, drugs या lack of exercise. तो all these reasons contribute for a disease. Now we'll talk about pathogenic diseases. Now what is pathogen? Pathogen are the disease causing organisms. तो disease causing organisms जो होते हैं वो pathogen कहलाते हैं, और pathogen अगर हमारी body में enter होते हैं तो they will cause some disease, and these pathogen may be bacteria, virus, protozoan, etc. तो pathogens are the parasites that enter the human body through various means, then multiply and interfere with normal vital activities. तो अलग अलग तरीके से हम देखेंगे, we'll discuss different diseases कि किस तरह से इन diseases के pathogens हमारी body में enter होते हैं and how do they affect our body. तो we will discuss these diseases. तो we start with the bacterial disease. आप अपनी book में पेज नंबर 146 पर देख सकते हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस. तो विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द डिजीजेज एंड व्हाट वी हैव टू नो. क्या हमें याद रखना है? एक तो पैथोजन, अ पर्टिकुलर डिजीज का कौन सा पैथोजन है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसके क्या कॉजेज. तो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर. सो लेट अस स्टार्ट विद द बैक्टीरियल डिजीज. वन ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज इज टाइफॉइड. टाइफॉइड का जो पैथोजन है इट इज सैल्मोनेला टाइफी. आप मार्क करते जाना, अंडरलाइन करते जाना. तो सैल्मोनेला टाइफी इज द पैथोजन, दैट इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफॉइड. इट स्प्रेड्स थ्रू. कैसे स्प्रेड होता है ये? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. अगर हमने क्लीन फूड या वाटर नहीं कंज्यूम किया है देन दिस ऑर्गेनिज्म में एंटर इनटू आवर बॉडी. साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पे जाकर ये इन्फेक्शन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सिम्टम्स: high fever, stomach pain, headache, loss of appetite. So there are too many symptoms of this disease. Constipation and intestinal perforations in severe cases. Actually ये जो बैक्टीरिया है जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये एक पैरासाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है और ये सारी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसका टेस्ट है, इफ़ somebody is suffering from typhoid तो ब्लड टेस्ट करवाने पर इसका confirmation होता है and that confirmatory test is the Widal test. So you have to remember this test also. So all these points are very important. Let us discuss another disease, that is pneumonia. It is also called by bacteria and the pathogen responsible for this is Streptococcus pneumoniae. इससे भी pneumonia हो सकता है. And the second is Haemophilus influenzae. So both these bacteria are responsible for the disease pneumonia. It spreads through droplet, aerosols. जैसे किसी को हो रहा है निमोनिया and if we are sitting with him or her and if he or she sneezes या coughs तो उसके droplets के थ्रू हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है. रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन या शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल्स. अगर हम सेम चीज़ शेयर करते हैं देन ऑल्सो दिस डिजीज में इन्फेक्ट अस. नाउ साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पे जाकर इन्फेक्शन होगा? दैट इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई आर द यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेशन में जहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट है वहाँ पे जाकर इसमें इन्फेक्शन होगा एंड द एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड वी विल फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो निमोनिया में इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखेंगे. तो सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, लिप्स एंड नेल्स बिकम ग्रे इन सीवियर केसेस. मेनली जो स्मॉल किड्स होते हैं एंड द एज्ड पीपल आर इन्फेक्टेड बाय द निमोनिया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है. तो दैट्स व्हाई दे मे सफर फ्रॉम दीज डिजीजेज एंड दीज आर द सिम्टम्स. नेक्स्ट विल टेक वायरल डिजीज. तो अभी हमने बैक्टीरियल डिजीज के दो एग्जाम्पल्स देखे. नाउ विल सी वायरल डिजीज. तो द मेन कॉमनली जो सबसे कॉमन वायरल डिजीज जिससे हम अधिकतर सफ़र होते रहते हैं दैट इज कॉमन कोल्ड. तो कॉमन कोल्ड, द पैथोजन फॉर द कॉमन कोल्ड इज राइनो वायरस. ये राइनो कैटेगरी का वायरस है एंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज. पूरा हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज और नोज इससे इन्फेक्टेड रहते हैं एंड इट स्प्रेड्स थ्रू अगेन ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को शेयर करने से भी इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. द सिम्टम्स आर नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गले में दर्द सा रहेगा, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस. तो वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस वायरल डिजीज दैट इज कॉमन कोल्ड. Another viral disease from which we are suffering, we are facing nowadays is you know that COVID. तो वो तो है ही सही and in your book only common cold is given.
So you have to remember these points, you have to learn according to this. Now we'll discuss protozoan disease. Protozoa is also a microorganism which is in for example plasmodium. Plasmodium क्या है? एक प्रोटोजोन है which is the malarial parasite. Now how does this malaria spread? है ना, हम जनरल का भी बात कर लेते हैं तो मलेरिया कैसे होता है, हम कह देते हैं कि मच्छर से होता है, बट मच्छर what the mosquito is doing, mosquito is transferring प्लाज्मोडियम फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. तो वो प्लाज्मोडियम क्या है उसका हम पूरा डिटेल में अभी देखेंगे, पर अभी सिर्फ हम कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल लेटर ऑन. तो पैथोजन रिक्वायर्ड फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज अवेलेबल है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया. तो इनमें से कोई भी किसी से भी हमें मलेरिया हो सकता है. एंड द वेक्टर अगेन आई विल एक्सप्लेन कि वेक्टर क्या है, वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन को ट्रांसफर कर रहा है. तो मलेरियल पैरासाइट तो प्लाज्मोडियम है और वेक्टर क्या है, मॉस्किटो. कौन सा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. सिम्टम्स आर हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स, मीन्स बुखार आएगा बहुत तेज और ठंड लगेगी. तो दीज आर द some points which you have to remember about malaria, और इसके बाद हम इसकी लाइफ साइकिल भी देखेंगे. बट बिफोर दिस लेट अस डिस्कस सम अदर प्रोटोजोन डिजीज ऑल्सो. तो एमीबियासिस है ना, इन रेनी सीजन जनरली क्या होता है, जब पानी गंदा अवेलेबल होता है, हमारे घरों में कई बार गंदा पानी आता है, तो इट में दैट रिवर वाटर या दैट वाटर में कंटेन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एमीबियासिस डिजीज and the vector is housefly. So housefly helps to spread this disease and the site of infection is large intestine. Symptoms: constipation, abdominal pain, cramps, stools with mucus and blood clots. So these are the symptoms of this disease, and then if the symptoms are these, then we have to go to doctor, and then this is the amoebiasis disease. This is, amoeba is also a protozoan. Now we will discuss some fungal diseases. Fungus is also a microorganism. इस केस में यहाँ पे microorganism जो है वो है आपका genera Microsporum and Trichophyton and Epidermophyton. All these fungal जो ये worms हैं, ringworms कहते हैं इनको, they are responsible for this type of skin disease, जिसमें it spreads through if we are sharing the towels or clothes of other person, and if that person is suffering from this ringworm disease, then what will happen, the disease may transfer to us also. तो हमारी स्किन में भी ये चीज़ें शेयर करने से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. एंड द सिम्टम्स विल, आप देख सकते हो डायग्राम में, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स, ऐसे निशान से हो जाएंगे, रेडनेस हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस ईचिंग. तो ईचिंग विल ऑल्सो बी देयर. So this is the fungal disease. Now some worms are also there which also spread diseases, जो parasite के form में हमारी body में रहते हैं. तो one of the worm disease is Escherichiasis. Escherichiasis is the name of disease and the pathogen is Escherichia. तो आपको ये ध्यान रखना है, Escherichiasis disease Escherichia से होता है. Commonly it is known as roundworm. पर ये कैसे हमारी बॉडी में चला जाता होगा, वर्म्स तो थोड़े बड़े होते हैं, बट समटाइम्स द वेजिटेबल्स और वाटर में कंटेन इट्स लार्वा या इसके एग्स होंगे जो हमें कई बार नज़र नहीं आते हैं. और अगर हम अनवॉश्ड वेजिटेबल्स या अनहाइजीनिक वाटर कंज्यूम कर लेते हैं तो ये जो एस्केरिस है इसके एग्स या फिर लार्वा हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. तो इट स्प्रेड्स थ्रू वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटेमिनेटेड बाय फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन may cause this disease. Symptoms are internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. So these are the symptoms of this disease. Some of the diseases which we are discussing, they are included in your practical part also. So you have to learn all these points from practical point of view also, and from these diseases, मतलब 2 मार्क्स में आप क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के से मान लीजिए कि एनी वन डिजीज में कम डेफिनेटली. ये जो छोटे छोटे हमने डिस्कस किए, दीज सिम्टम्स एंड पैथोजेंस, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम प्रॉपरली.
One more worm disease is elephantiasis. This is also known as filariasis because it is caused by filarial worm. Actually the pathogen, इसका नाम है Wuchereria. Wuchereria malai and Wuchereria bancrofti are the two species of this worm. It spreads through bite of female mosquito vector. Now you have to remember this कि इसका भी vector तो mosquito ही है, but ये worm हमारी body में enter करवा देता है. Symptoms you can see on the picture, screen में देख सकते हो आप कि the lower part of the body is swelling up. नाम ही इसका elephantiasis means the lower part of the body is swelling up. पैर बिल्कुल थिक हो गए इनके. तो इट causes chronic inflammation of the organs, usually the lymphatic vessels of the lower limb. तो lower limb के जो lymphatic vessels हैं जो हमारे immunity को भी control करते हैं, they are infected and this disease is caused. So let us discuss the life cycle of Plasmodium. As we know that Plasmodium is the malarial parasite. अब हमें मलेरिया का इन्फेक्शन कैसे होता है तो वो समझने के लिए we'll start from here कि जब when the mosquito bites the human, तो एक्चुअली क्या होता है मॉस्किटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है जिसको हम स्पोरोजॉइट कहते हैं. तो व्हेन द प्लाज्मोडियम इज एट दिस स्टेज, जब मॉस्किटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट स्टेज होती है और उस वक्त अगर वो किसी को बाइट करता है तो वो अपने सलाइवा के थ्रू, मतलब वो उसको चाहिए तो क्या इट वांट टू सक द ब्लड, लेकिन वो अपने सलाइवा के थ्रू ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं प्लाज्मोडियम के ये हमारी बॉडी में डाल देता है. तो यहाँ से हमारा इन्फेक्शन स्टार्ट होता है. अब सबसे पहले जब ये स्पोरोजॉइट्स हमारे ब्लड में आ गए, ये सबसे पहले जाता है लिवर में. लिवर के सेल्स में ये एंटर हो जाता है प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट स्टेज और वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होता है. दैट मीन्स एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है लिवर के सेल्स में. तो लिवर के सेल्स में ये मल्टीप्लाई होता है और जो लिवर के सेल हैं वो बर्स्ट होते हैं एंड इट रिलीजेज द प्लाज्मोडियम. वहाँ पे बहुत सारे डिवाइड होकर और रिलीज हो जाते हैं. अब ये स्प्रेड होकर ब्लड में आ जाते हैं. ब्लड में ये आरबीसीज में आ जाते हैं, आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं. आरबीसी को जब इन्फेक्ट करेंगे देन अगेन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड यहाँ पे आकर जब ये इन्फेक्शन होता है तो हमें फीवर आते हैं. फीवर आता है टाइम टू टाइम. आपको पता होगा मलेरिया में जैसे एवरी आफ्टर 24 आवर्स इस तरह से एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये फीवर आता है. तो फीवर आएगा एंड जो पैरासाइट्स हैं प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी विल बर्स्ट और ये रिलीज हो जाते हैं. और यहीं पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं. हीमोजोइन आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है ज़रूर से कि हीमोजोइन इज द टॉक्सिन रिलीज्ड बाय दीज प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से फीवर और चिल्स यानी कि ठंड लगकर जो हमें बुखार आता है वो इस हीमोजोइन की वजह से आता है. अब यहाँ तक तो हमने देखा कि द प्लाज्मोडियम इज रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली ओनली. नाउ जब ये आरबीसी में ही है तो यहाँ पे ये कुछ प्लाज्मोडियम गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. अभी हम ह्यूमन के बारे में ही बात करना है, ये ह्यूमन ब्लड में ही है अभी प्लाज्मोडियम एंड सम गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. अब इस स्टेज पर इफ यहाँ पे जो ह्यूमन की हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर इस स्टेज पर अगर कोई मच्छर आकर कोई मॉस्किटो आकर फिर से इस पर्सन को बाइट करता है तो ये जो गैमेट्स हैं दीज गैमेट्स विल बी टेकन बाय द फीमेल मॉस्किटो. तो ये गैमेट्स कौन ले लेगा? फीमेल मॉस्किटो विल टेक अप द गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील. ब्लड के साथ साथ वो ले लेता है. नाउ यहाँ पर अब मॉस्किटो की बॉडी के अंदर की लाइफ साइकिल चल रही है ना, यहाँ से यहाँ तक तो ह्यूमन की बात थी. नाउ दिस पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज टेकिंग प्लेस इन द मॉस्किटो. अब यहाँ पे जो गैमेटोसाइट्स है इनका फ्यूजन होगा. फ्यूजन विल टेक्स प्लेस, दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स विल टेक प्लेस. तो ये कैसा रिप्रोडक्शन हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पे. तो in the intestine of mosquito, this will take place in the intestine of mosquito and then the plasmodium move to the salivary glands of the mosquito. ठीक है, देखो यहाँ पे ये salivary glands है. salivary glands में बहुत सारे sporozoites यहाँ पर आ चुके हैं. Now again at this stage यहाँ पे sporozoite है. अब अगर mosquito again bites to some other person तो ये sporozoites वो उनकी बॉडी में एंटर कर देगा. तो इन दिस वे द साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इन 2 होस्ट. 2 होस्ट की जरूरत है, एक तो ह्यूमन और एक मॉस्किटो. मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस दैट इज स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड.
तो एट द एंड मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइड्स आ जाएंगे। अब वो किसी भी अगर दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो अगेन द लाइफ साइकिल विल स्टार्ट। अगर ये इस बीच में, इस टाइम में अगर कोई दूसरा मॉस्किटो पर्सन को नहीं बाइट करता है तो यहाँ पे ये एंड अप हो जाते हैं, द स्पोरोजॉइट्स विल बी किल्ड, या इनकी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर इसको दूसरा होस्ट मिल जाता है या मॉस्किटो इसको अगेन बाइट करता है तो ये इसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी। सो हमने देखा कि किस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गोज ऑन। तो हम कुछ पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसके थ्रू, है ना। प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, वन इज ह्यूमन एंड वन इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। एक जनरल सा क्वेश्चन है कि वाई ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट्स, या वो ही क्यों मलेरिया स्प्रेड करता है? बिकॉज इट नीड्स द ब्लड मील से उसको क्या हेल्दी डाइट मिलती है, न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है। तो वो फीमेल को फॉर एग ले करने के लिए उसको वो न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है। दैट्स व्हाई female Anopheles mosquito takes the blood of mammals. So when female Anopheles mosquito bites a healthy human being, it releases plasmodium. Plasmodium release कर देगा उनके blood में, which lives in its body as sporozoid. तो infectious form of plasmodium क्या है? Sporozoid, ये आपको याद रखना है. The parasites multiply asexually in the liver cells and finally burst the liver cell. Liver cell burst होंगे और सारे plasmodium release हो जाएंगे, स्पोरोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे। इसके लिए आप बुक में पेज 148 पर फिगर 8.1 रेफर कर सकते हो। तो द डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टेजेस। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपके आ सकता है। पैरासाइट्स एंटर इनटू आरबीसी, लिवर से आरबीसी में आ जाएंगे एंड फर्दर मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, वहाँ पे भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड फाइनली बर्स्ट आरबीसी ऑल्सो, आरबीसी में से भी बर्स्ट हो जाएंगे। आरबीसी विल ऑल्सो बर्स्ट एंड टॉक्सिन विल बी रिलीज्ड, अभी मैंने आपको बताया था हेमोजोइन। दिस इज द कॉज ऑफ फीवर एंड चिल्स। In the RBCs, only sporozoites changes into gametocytes, that is the sexual stage of plasmodium, and gametocytes multiply. When the diseased person is bitten by a female Anopheles mosquito, gametocytes are introduced into the mosquito. तो वो infected person में से फिर से जो sporozoites हैं वो female mosquito में चले जाएंगे and gametocytes वहाँ पे fertilize होते हैं, zygote बनेगा एंड इन द कहाँ पे होगा ये? इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स। तो वहाँ पे फिर से स्पोरोजॉइड्स बन जाएंगे। देन स्पोरोजॉइड्स आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो एंड दे आर रिलीज्ड इनटू द हेल्दी पर्सन व्हेन दैट मॉस्किटो बाइट्स टू अ पर्सन। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर इट एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ विल स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी आज के टाइम में हम देखें तो इम्यूनिटी की हम बहुत बात करते हैं। इम्यूनिटी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू एस्केप फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज की। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं तो उनसे बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज। मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऑलवेज आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा रहते हैं एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एंटरिंग इनटू आवर बॉडी कंटिन्यूसली। हमेशा हमारी बॉडी में ये जाते ही रहते हैं, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते। वी आर नॉट ऑलवेज डिजीज्ड। तो क्यों नहीं होते हम डिजीज? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है। तो इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है वो भी हम देखेंगे। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं, WBC के आपने बारे में पढ़ा है, तो WBC फाइट्स हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेज। तो अब थोड़ा हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो पैथोजेंस है, उनको हमारी बॉडी से दूर रखता है, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी उसको फाइट करके किल कर देती है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब कुछ इम्यूनिटी जो हम बर्थ के साथ हमारे पास होती है और कुछ जो हम लाइफ ड्यूरेशन में ऑब्टेन करते हैं। So let us start with the innate immunity. You can refer to page number 150 for this. Now innate immunity is present from the time of birth. As we जैसे ही हमारा बर्थ होता है तभी ये इम्यूनिटी हमारे साथ होती है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड इट इज़ ऑफ 4 काइंड्स, दैट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मीन्स जैसे कि स्किन है,
स्किन प्रोटेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे स्किन के थ्रू नहीं जा सकते हैं बिकॉज पूरा वो कवरिंग है। स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जो हमारी बॉडी का इंटरनल ट्रैक्ट है उसको ये म्यूकस कोटिंग प्रोटेक्ट करती है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ये माइक्रोब्स नहीं जा पाते हैं ड्यू टू दिस फिजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर प्रेजेंट, जैसे कि हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी हमारा जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उनको किल करता है। सलाइवा इन द माउथ ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया एंड टीयर्स फ्रॉम आइज, तो आइज को भी क्लीन करने के लिए या आइज में भी कोई बैक्टीरिया अगर आ जाते हैं तो उनको भी क्लीन करने के लिए, उनको किल करने के लिए टीयर्स आर देयर। थर्ड इज सेल्यूलर बैरियर्स, कि हमारी बॉडी के सेल्स भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो विच टाइप ऑफ सेल्स, जैसे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है? WBC। तो ब्लड हैज ल्यूकोसाइट्स सच एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब WBC के पार्ट्स हैं। एंड टिश्यू एज मैक्रोफेजेस विद फेगोसाइटोस एंड विद फेगोसाइटोस द माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को किल कर देते हैं। फोर्थ इज साइटोकाइन बैरियर। स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स आर सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जब हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो मान लो जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है वो सेल कुछ इस तरह के स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट करता है जो दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, तो इट प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो दीज आर द 4 काइंड ऑफ इननेट इम्यूनिटी। नाउ लेट अस डिस्कस एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मींस जो हम बाहर से लेंगे, हम एक्वायर करेंगे, that it is produced in response to an encounter with a pathogen based on memory. It is pathogen specific. तो ये कब होगी डेवलप? जब भी कोई माइक्रोब या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट ये वर्क करेंगे। तो दिस इम्यूनिटी कब, ये इम्यूनिटी कब काम करेगी? जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो व्हेन अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट्स अ पर्सन, लो इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। जब हमारी बॉडी उस पैथोजन को नहीं पहचानती है, फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए रेडी नहीं है। एक्चुअली इम्यूनिटी हमारी कैसे वर्क करती है, देखो, तो सपोज अभी हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं, तो उसमें भी हम समझ सकते हैं कि व्हेन वी आर एक्सपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू पर्टिकुलर दैट वायरस, तो तब हमारी बॉडी में थोड़ा सा लो इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो क्या होता है, हम डिजीज्ड हो जाते हैं। When the same pathogen attacks again, तो ये कई सारी वायरल डिजीजेस के लिए वर्क करता है कि वही पैथोजन अगर दोबारा जब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उससे फैमिलियर है, तो इट विल नाउ फाइट विद मोर विगर। वो पूरी तरह से रेडी है, वो पहले पहचान चुकी है, उसकी मेमोरी में ये रहेगी बात कि दिस पैथोजन हैज़ ऑलरेडी वंस एंटर्ड इनटू द बॉडी। तब इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स के साथ उसमें जो इम्यूनिटी है वो जनरेट होगी, thereby preventing the occurrence of disease। अब दोबारा वो डिजीज़ नहीं होगी, जैसे हम चिकन पॉक्स के केस में भी देखते हैं, या कई वायरल डिजीजेज ऐसी हैं जो अगर हमको एक बार हो चुकी हैं देन इट विल नॉट इन्फेक्ट अस अगेन। तो वो क्यों नहीं होता है दोबारा इन्फेक्शन? बिकॉज ऑफ आर इम्यूनिटी। एक बार हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उससे फैमिलियर हो जाता है तो दोबारा उस चीज़ को वो फिर दोबारा अटैक नहीं कर पाते और हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती है एंड वी डू नॉट गेट डिजीज्ड अगेन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी you have to mark this definition and the types of innate immunity and acquired immunity. Now acquired immunity involves 2 types of cells. 2 important cells हैं जो हमारे immunity में work करते हैं, that is B lymphocytes and T lymphocytes. ये WBC के ही parts हैं। Now किस तरह से दोनों work करेंगे? Let us see. B lymphocytes secrete proteins called antibodies. Antibodies कब बनती हैं? जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है, तो एंटीजेंस जब आएंगे तो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। एंटीबॉडीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे हम, आप बुक में पेज 151 पर फिगर 8.4 मार्क कर लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज गिवन एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी और इसका स्ट्रक्चर भी। तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड यू हैव टू लर्न द डायग्राम ऑल्सो। So let us discuss the structure of antibody molecule. Antibodies are specialized protein with 4 peptide chains. 4 peptide chains हैं जिसमें से 2 light है और 2 heavy है, hence denoted as H2L2. ये H2 means heavy, 2 polypeptide chains are heavy and 2 light polypeptide chains.
इसमें ये एंटीबॉडीज कौन कौन सी देखिए, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज these are the examples of antibodies and they generate humoral immune response. तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ब्लड में, तो फाउंड इन ब्लड, इसलिए इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. एज आई टोल्ड यू, दो चेन्स हैं, वन इज हैवी चेन एंड वन टू हैवी चेन्स हैं और टू लाइट चेन्स हैं. ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है. जब भी कोई एंटीजन एंटर होता है तो ये एंटीबॉडी से अटैच होता है और ये एंटीबॉडी उसको किल करती है. दिस इज हैवी चेन एंड दिस इज लाइट चेन. तो आपको ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी मार्क कर लीजिए. अभी हमने पढ़ा बी लिम्फोसाइट्स. नाउ लेट अस डिस्कस टी लिम्फोसाइट्स. दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. तो बी सेल्स का क्या फंक्शन था, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना. तो टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में. दे जनरेट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. वहाँ पे था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. दिस रिस्पॉन्स हेल्प्स द बॉडी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. अब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में जैसे कोई एंटीजन या कोई पैथोजन एंटर हो रहा है तो वो फॉरेन सेल है, वो बाहर का सेल है, उसको किल करना है. लेकिन बॉडी को कैसे पता चले कि ये सेल बाहर का है और ये सेल अंदर का ही है. तो दिस इम्यून रिस्पॉन्स हेल्प टू आइडेंटिफाई या टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. खुद का सेल और दूसरा जो नहीं है उसमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. तो एज इट ऑकर्स इन केस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन. एक्चुअली क्या होता है, जब हम या तो ब्लड इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी बॉडी में या फिर कोई दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है. तो ये इससे हमें ये पता लगता है कि बॉडी आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दोनों में फ़र्क करना जानती है. नाउ विल जस्ट डिस्कस फ्यू पॉइंट्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन active immunity and passive immunity. So through this table we can understand the difference. Active immunity is the natural acquired immunity produced in the host body in response to an antigen. तो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है और उस वक्त जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दिस इज द एक्टिव इम्यूनिटी. Passive immunity, when ready-made antibodies are provided to an individual to protect against foreign agents. जैसे हम वैक्सीन्स वगैरह लेते हैं तो this comes under passive immunity. Active immunity में immunization and body is getting naturally immune to a microbe that had caused infection previously. तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कि जब बॉडी हमारी पुराने पहले वाले इन्फेक्शन को याद रखती है. पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है कोलोस्ट्रम, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदर्स मिल्क विच कंटेन इम्यूनोग्लोबिन ए. तो व्हेन द फीटस इज टेकिंग दिस मिल्क तो उसमें एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती हैं एंड द फीटस गेट्स एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा ऑल्सो. तो थ्रू कोलोस्ट्रम एंड थ्रू प्लेसेंटा दीज एंटी इम्यूनिटी इज डेवलप्ड. नाउ विल टेल यू कि हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स. वैक्सीनेशन कैसे वर्क करता है ये हम देखते हैं. जैसे अभी हमने देखा था कि हमारी इम्यूनिटी रिमेंबर रखती है, पैथोजेंस को याद रखती है और जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो उससे फाइट करती है. तो वैक्सीनेशन से भी हम इसी तरह का काम करवा रहे हैं. वैक्सीनेशन में एक्चुअली व्हाट वी आर गिविंग, वी आर इंट्रोड्यूसिंग पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी. लेकिन वो पैथोजेंस एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव या फिर वीक पैथोजेंस होते हैं या डेड पैथोजेंस होते हैं. ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे इंट्रोड्यूस हो जाए, उन एंटीजन से या उन पैथोजन से, वायरस से या बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस हो जाए ताकि उसमें एक रिस्पॉन्स डेवलप हो जाए. और अगर सेम पैथोजन एक्चुअल में अगर एंटर होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी विल फाइट विद मोर इंटेंस या मोर विगर एंड विल नॉट गेट डिजीज्ड. तो इसी तरह से वैक्सीनेशन वर्क करता है. सो लेट अस रीड दिस. वैक्सीन्स आर नथिंग बट इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस. These inactivated pathogens when introduced in the body produce a primary immune response. जो first time response produce हो रहा है वो primary immune response है and antibodies are produced against the pathogen. तो हमारी बॉडी में antibodies produce हो जाती हैं first time में. Memory B cells and T cells are produced at that time only and now when the pathogen again attacks the person, memory B cells and T cells generate a massive immune response. मतलब बहुत ज़्यादा quantity में एंटीबॉडीज आती हैं, बनती हैं एंड द पैथोजन इज किल्ड एंड वी डू नॉट गेट डिजीज्ड. नाउ
ये तो हमारी बॉडी की अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी है, बट इसकी वजह से कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो वो देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज फॉर एग्जांपल एलर्जीज। एलर्जी सुना होगा आपने सबने कि एलर्जी, कई बार हमें जैसे डस्ट से एलर्जी हो जाती है, पॉलन से एलर्जी है, किसी फ्रेग्रेंस से एलर्जी है। तो ये कैसे होता है, देखिए, एक्सेग्रेटेड मीन्स हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा ही एक्टिव है, जो किसी बाहर की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेग्रेटेड इम्यून सिस्टम immune response to certain antigens present in environment. The substance which cause allergy, सबको अलग अलग चीज़ से एलर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होगा। तो allergens are the substances which causes allergy in a particular person. तो substance in response to which allergy is produced are called allergens. For example, dust, pollen, etc. और इससे फाइट करने में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgE टाइप है, दैट मीन्स इम्यूनोग्लोबिन E type of antibody fights against these allergens. During allergic reactions, chemicals, हमारी बॉडी में chemicals generate होते हैं, like histamines and serotonins are released. तो जब एलर्जी होती है तब ये रिलीज होते हैं। And the symptoms like sneezing, watery eyes, difficulty in breathing. तो इस तरह के symptoms हमें दिख सकते हैं। एलर्जी टेस्ट करवाते हैं कई बार हम, कि मान लो पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ से एलर्जी है, तो एलर्जी टेस्ट होते हैं जिसमें कि the person is injected with small doses of allergen. अलग अलग एलर्जन को देकर पता लगाया जाता है कि फिर बॉडी का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इससे एलर्जी टेस्ट होते हैं। सो टू मॉनिटर हिज रिस्पॉन्स एंड एंटीहिस्टामाइंस, एड्रेनलिन्स एंड स्टेरॉइड्स मे बी गिवन सो दैट द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी सबसाइड। तक तो एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को या इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी ओवर रिस्पॉन्स नहीं करे। ठीक है, तो these medicines या these treatments are given to reduce the symptoms of allergy. One more topic is there, autoimmunity. तो what is autoimmunity? जैसे अभी हमने बताया कि सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स को डिस्टिंग्विश करना जानती है बॉडी। तो इन ऑटोइम्यूनिटी बॉडी जनरेट्स इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। तो ये बॉडी की एक नेगेटिव पॉइंट है कि बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। तो इस ऑटो इम्यूनिटी से कई डिजीजेज हो सकती हैं एंड द रीजंस फॉर ऑटो इम्यूनिटी में भी जेनेटिक भी हो सकता है या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज वन ऑफ द डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एंड वी may get affected by this disease, that is rheumatoid arthritis. Now we'll understand something about our immune system, कि कैसे हमारा immune system work करता है। तो हमारे जो lymph है, blood पढ़ा है आपने, and lymph जो lymphoid organs में store होता है, that works very importantly. See, lymphoid organs are of two types, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. How do they work? Primary lymphoid organs consist of bone marrow and thymus. Bone marrow क्या है, जो हमारी long bones होती हैं उनमें एक slit रहती है bones में, where the blood cells are produced. सभी तरह के blood cells, RBC, WBC, platelets और all are कहाँ बनते हैं, सब bone marrow में बनते हैं. And thymus is located near heart. ये भी हमारे immune system को control करता है। तो here immature lymphocytes are differentiated to form antigen sensitive lymphocytes. तो यहाँ पे lymphocytes बनेंगे, that's why they are called primary lymphoid organs. So bone marrow, here all blood cells including lymphocytes are produced, and the thymus which is responsible for maturation of T lymphocytes. यहाँ पे T lymphocytes mature होंगे, तो this is the lobed organ situated near the heart and keeps on reducing the size. जब birth होता है तब ये थोड़ा लार्ज साइज का रहता है ये ग्लैंड, एंड इट रिड्यूसेस एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट हियर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में तो लिम्फोसाइट्स बने थे, अब ये माइग्रेट होंगे। इट इंक्लूड्स स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स। ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। स्प्लीन कैसा होता है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स विच एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड।
लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में, आप एक फिगर देखिए पेज नंबर 154, पेज 154 पर one figure is given 8.5. Here you can see a diagram which is showing lymphatic vessels and lymph nodes. तो lymph nodes are located at different points. जिस तरह से glands जैसे रहते हैं और यहाँ पे lymph store होता है and time to time it is transferred या transported through lymphatic vessels. तो पूरे immune system को ये कंट्रोल करता है. They trap the antigens, जैसे ही antigens यहाँ आएंगे वो ट्रैप कर लेगा और उनको किल करता है. And these antigens cause activation of lymphocytes and generation of immune response. तो ये lymphatic system is very important for our immune system. And the last thing, MALT, that is mucosal associated lymphoid tissue. This is also important for lymphatic system. ये क्या है actually? ये एक coating है mucosa की which lines major tracts, जो हमारी body के internal tracts हैं जैसे respiratory, digestive एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, इनके ऊपर इसकी लेयर होती है विच कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन बॉडी, और ये भी प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को ताकि पैथोजेंस हमारे ब्लड में एंटर नहीं हो पाए. तो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. स्टिल वी हैव 2 टॉपिक्स विच आर रिमेनिंग विच वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप you would have understood. Okay, so go through the video and the doubts will be discussed in the doubt session. Okay, take care, goodbye. रहता है ये ग्लैंड एंड इट रिड्यूसेस एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट हियर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी. तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में तो लिम्फोसाइट्स बने थे, अब ये माइग्रेट होंगे. इट इंक्लूड्स स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स. ये सब क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है. स्प्लीन कैसा होता है? लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स विच एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड. लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में, आप एक फिगर देखिए पेज नंबर 154, पेज 154 पर one figure is given 8.5. Here you can see a diagram which is showing lymphatic vessels and lymph nodes. तो lymph nodes are located at different points. जिस तरह से glands जैसे रहते हैं और यहाँ पे lymph store होता है and time to time it is transferred या transported through lymphatic vessels. तो पूरे immune system को ये कंट्रोल करता है. They trap the antigens, जैसे ही antigens यहाँ आएंगे वो ट्रैप कर लेगा और उनको किल करता है. And these antigens cause activation of lymphocytes and generation of immune response. तो ये lymphatic system is very important for our immune system. And the last thing, MALT, that is mucosal associated lymphoid tissue. This is also important for lymphatic system. ये क्या है actually? ये एक coating है mucosa की which lines major tracts, जो हमारी body के internal tracts हैं जैसे respiratory, digestive एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, इनके ऊपर इसकी लेयर होती है विच कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन बॉडी, और ये भी प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को ताकि पैथोजेंस हमारे ब्लड में एंटर नहीं हो पाए. तो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. स्टिल वी हैव 2 टॉपिक्स विच आर रिमेनिंग विच वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप you would have understood. Okay, so go through the video and the doubts will be discussed in the doubt session. Okay, take care, goodbye.